Assalamualaikum dear students. Welcome to e-learning class of IT. I am Imtiaz Ahmad Itu, vocational trainer of IT from ITRC Technologies. Presently posted at Government Higher Secondary School Khul. हम पढ़ रहे हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा द वेरियस पार्ट्स ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, द पार्ट्स ऑफ द लिब्रे ऑफिस राइटर। Okay, let us take a quick recap what we have learned in the first session of LibreOffice, parts of LibreOffice Writer. We have learned that at the top of the Writer window there is title bar, and the title bar shows the name of the document on which we are working. And by default, the name of the on the title bar is untitled, and whenever we save the file with any name, the name is shown at the title bar, and this is the title bar. Okay, and at the right side of the title bar there are three buttons: close, restore down, and minimize, which are used to minimize the window, restore down the window, to close the LibreOffice Writer window. After the title bar there is a menu bar. Menu bar is present below the title bar, and it shows the menus, items like our file, edit, view. We can select the sub-menus from the menu button, and we can select any item from the sub-menu as per the requirement. And we have also learned that after selecting any menu, the sub-menu will appear. जब भी हम कोई सब मेनू पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे शो होता है हमारा सब मेनू, एंड द सब मेनू भी शोज दिस एरो एट द राइट हैंड साइड। जो भी हमारा मेनू राइट हैंड साइड में जिसको ये एरो होता है, वो इसका मतलब होगा कि whenever we click on this arrow, it shows the another sub menu. वहाँ पे और एक सब मेनू दिखेगा, and the sub menu which shows the three dots at the right hand side. जो तीन डॉट्स दिखाता है हमें, जिसके सब मेनू के आगे तीन डॉट्स होगी, उसका मतलब है whenever we click on that sub menu which shows the three dots, means it will open a dialog box at the LibreOffice Writer window. Okay, this is the quick recap. Now we are going to discuss about other parts of the Writer window, that are toolbars. The toolbars appears below the menu bar. Toolbar जो होते हैं वो हमारे menu bar के नीचे बिल्कुल होते हैं. These are toolbars, and by default the standard toolbar and formatting toolbar will appear. By default क्या होता है, जो भी हम LibreOffice Writer या कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं उसमें कोई by default toolbars होती हैं. हमारे LibreOffice Writer में अभी फॉर्मेटिंग टूल बार और स्टैंडर्ड टूल बार होता है डिफ़ॉल्ट में. हम बाकी टूल बार्स वहाँ पे ऐड कर सकते हैं बाय गोइंग टू व्यू, एंड हमें व्यू पे जाके क्लिक करने के बाद वहाँ पे टूल बार सिलेक्ट करना है, कौन कौन सा टूल बार हमें यहाँ पे दिखना चाहिए. ओके, स्टैंडर्ड टूल बार क्या होता है? इट कंटेन्स द कमांड्स इन द फॉर्म ऑफ आइकन. स्टैंडर्ड टूल बार पे होते हैं हमारे कमांड्स इन द फॉर्म ऑफ आइकन्स. आइकन यहाँ पे हुआ है, अगर हम इन आइकन पे क्लिक करेंगे तो कोई कमांड ऑपरेट होगी. दैट मीन्स दिस आइकन इज ओपन कमांड, this icon is save command, this icon is print command, this icon is format painter command, this icon is paste command, this is cut copy command, this is cut command. बस ये सारी कमांड्स जो है ये हमारे स्टैंडर्ड टूल बार पे होती है इन द फॉर्म ऑफ आइकन्स. एंड नेक्स्ट दैट इज फॉर्मेटिंग टूल बार. फॉर्मेटिंग टूल बार कंटेन्स द वेरियस ग्रुप्स ऑफ ऑप्शंस फॉर फॉर्मेटिंग ए डॉक्यूमेंट. अगर हमें डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना होगा, वहाँ पे जो लिखा है उसको शेप साइज देनी होगी, तो हम उसको फॉर्मेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मेटिंग टूल बार. एंड इट शोज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कमांड्स इन द फॉर्म ऑफ आइकन्स. इट ऑल्सो शोज दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कमांड्स. हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कमांड्स होती है, जैसे कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. अगर हम ऐसे लिखेंगे डेट मीन्स ये बोर्ड लिखा जाएगा. अगर हम इस पर क्लिक करेंगे, अगर इस पर क्लिक करेंगे टैग लिखा जाएगा. अगर हम इस पर क्लिक करेंगे जो हमारा टेक्स्ट है वो अंडरलाइन लिखा जाएगा. दैट इज फॉर्मेटिंग ऑफ द टेक्स्ट. दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कमांड shows how we write the text, how the text is shown in the document. जैसे कि यहाँ पे हमारे है this graphical representation shows the superscript and this representation shows the subscript. हम अपने डॉक्यूमेंट को के टेक्स्ट को इस फॉर्मेटिंग टूल बार से फॉर्मेट कर सकते हैं. एंड दिस फॉर्मेटिंग टूल बार कंटेन्स अदर ऑप्शंस फॉर फॉर्मेटिंग ए डॉक्यूमेंट, लाइक हमारा है फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज. तो हम ये अपने LibreOffice Writer में कर सकते हैं. उसके बाद आता है हमारा स्टेटस बार. स्टेटस बार क्या होता है कि ये स्टेटस का मतलब होता है कोई चीज़ दिखाना. हम कहाँ पहुँचे,
हमने कितना लिखा, हम किस पेज पे हैं, दिस इज द स्टेटस. दिस इज पोजिशन एट द लेफ्ट बॉटम ऑफ द राइटर विंडो. ये पोजिशन होता है स्टेटस बार बॉटम ऑफ द राइटर विंडो. जो यहाँ पे हमारी राइटर विंडो इसकी बॉटम में स्टेटस बार है, वो क्या दिखाता है, हमने कितने पेजेस लिखे, हमने कितने कैरेक्टर्स लिखे, हमने कितनी वर्ड्स लिखे. बॉटम ऑफ द राइटर विंडो एंड डिस्प्लेज द नंबर ऑफ पेजेस, हमने कितने पेजेस लिखे, नंबर ऑफ वर्ड्स, द लैंग्वेज यूजर, हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं वो भी इस पे शो होती है. हमने यहाँ पे मिनिमाइज कर दिया इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा है, हमारा यहाँ पे आता होगा. इट इज़ लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द वर्क प्लेस. ये जो स्टेटस बार है ये बॉटम ऑफ द वर्क प्लेस, हमारी वर्क प्लेस अभी है राइटर विंडो. राइटर विंडो के बॉटम में होगा हमारा स्टेटस बार. ओके, दिस इज स्टेटस बार. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द राइटर विंडो इज स्क्रॉल बार. हमारे पास स्क्रॉल बार होते हैं राइटर विंडो में, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल एंड वर्टिकल स्क्रॉल, विच इज यूज्ड टू स्क्रॉल द डॉक्यूमेंट. अगर डॉक्यूमेंट को हमें स्क्रॉल करना है, ऊपर नीचे करना है, तो हम ये स्क्रॉल यूज करते हैं. दिस इज स्क्रॉल बार, इसको हम स्क्रॉल बार कहते हैं. ओके, दिस इज हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार एंड दिस इज वर्टिकल स्क्रॉल बार. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द राइटर विंडो दैट इज जूम. Zoom is located at the right bottom of the writer window. Writer window के right bottom पे बिल्कुल यहाँ पे zoom है, which is used to change the scale of the text. हमने text जो लिखा है पेज पे अपने राइटर डॉक्यूमेंट में, उसका स्केल, उसकी स्केल जो है हम वो कितना बड़ा देख सकते हैं या छोटा देख सकते हैं, हम उसको चेंज कर सकते हैं. बट इट डज नॉट अफेक्ट द फिजिकल डॉक्यूमेंट. जो फिजिकल डॉक्यूमेंट होता है उसको इफेक्ट नहीं करता है, वो सेम रहेगा. उसका साइज़ अगर A4 होगा तो वो A4 ही रहेगा. मगर यूज़र को दिखाने के लिए, व्यू करने के लिए हम उसको जूम कर सकते हैं. टू चेंज द स्केल ऑफ द डॉक्यूमेंट वी यूज़ द जूम. इट इज यूज्ड टू चेक द फिनिशिंग क्वालिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट जब निकलेगा प्रिंट तो ऐसे कैसे निकलेगा, हम जूम से भी देख सकते हैं. वी कैन चेंज द जूम, वी कैन इंक्रीज द जूम बाई क्लिकिंग ऑन प्लस एंड डिक्रीज द जूम बाई क्लिकिंग ऑन माइनस. हमने यहाँ पे 100 लिखा है तो 100 पे 100 जूम डिफॉल्ट होता है, तो हम उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं एंड डिक्रीज भी कर सकते हैं. Thanks for patient watching. Stay home, stay safe.